Hello and welcome. Welcome to this special episode मार्केट में ऑल टाइम हाई बनने को आया है राइट. तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, दैट इज द main concern with most of the retail traders today, retail investors, let me correct myself, right? So शेयर बाजार में जो उछाल है अब क्या करें, this is what we are going to discuss in this episode of stock market की बात, right? So let's look at what all is happening in the markets, not only in our market but other markets as well, right? So we'll share everything and we'll see how our market is poised, whether we should book all profits now in our portfolio and then sit tight and look for a fall, or shall we continue our journey of investment? That's a mute question, and hundreds of people have asked me that question every now and then. It's very frequent. Every time the market comes close to 18,200, 18,300, that the technical concept of a distribution zone starts, right? And most of the people book the profit at this point of time. एंड स्पेशली उन लोग जिन लोगों ने पास्ट में ऐसा नहीं किया और मार्केट ने एक फॉल दिखाया वहां पे, राइट? सो अगर हम देखें कि फर्स्ट टाइम निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पोस्ट कोविड का बनाया था, दैट वाज आई थिंक ऑलमोस्ट ईयर बैक, लेट्स से I think it was 19th or 10th of November when all time high of 18,604 का हाई मारा था निफ्टी ने, राइट? उसके बाद नेक्स्ट टाइम निफ्टी केम क्लोज टू दैट, आई थिंक इट टच्ड 18,400 आफ्टर ऑलमोस्ट टू एंड हाफ मंथ्स. क्या हुआ? वापस एक फॉल देखा हमने, राइट? लेट मी शेयर द चार्ट विद यू so that you can relate to it, right? Give me a minute. Let me share the chart with you. You will be able to relate to what I'm saying, right? So this is a Nifty chart, and then we saw a fall again, right? And that led Nifty to reach 15,700 level, and again market up gay with the effort of almost 1.5 months, and by the time we reached 18,100, that was another distribution zone जहां पे वापस से प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई. ऑफ कोर्स डाउन साइड जाने के कई कारण थे. ऑयल प्राइसेस हाई हुए. ऑलमोस्ट 9 महीने 8-9 महीने पहले रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हो गया, तो ऑन टॉप ऑफ दैट यूएस में ऑल टाइम हाई रिसेशन, ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन, राइट? एंड various events. A market is full of the events, and market keeps on discounting those events in terms of the price going up and down, right? So what's been happening from, let's say, May June की बात है, right? Almost 15th of June के आसपास में मार्केट ने लो मारा 15,200 के आसपास का, and from there it has been consistently gaining strength and going upside. Of course छोटा सा करेक्शन हुआ था यहाँ पे वापस, but market has already decided not to go down further below 16,750 के आसपास में, right? So this is what Nifty has been doing, right? There are, you might be seeing red and green lines, those are support and resistance lines, right? So now ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि वापस मार्केट 18,202 में पहुंच गई है, which is almost just 400 point below the all-time high, right? So that's one aspect of it. अगर आपने द स्टॉक मार्केट की बात एमजे के साथ पिछले सैटरडे को सुना होगा, तो मैंने क्लियरली वहां पे मैक्रोज एंड माइक्रोज ऑफ आर इकोनॉमी, अदर्स इकोनॉमी अराउंड geopolitical scenario डिस्कस किया था. Quickly I'll wrap that up. Our GST collection for last 14 months has been going more than 1 lakh crore. That's a great news. And in fact, last month जो हमारे पास में अक्टूबर का डेटा आया, that's around 1.52 lakh crore, all time high है, right? Advanced tax corporate का अगर आप देखेंगे, everything is up by 15%
और 17% और 27%, चाहे वो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुए। Q2 के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सारे कंपनीज के आ गए। Q1 वाज गुड, Q2 वाज greater, right? Much better than Q1. So obviously tax collection ज्यादा हो रहे हैं। There could be one more logic कि भाई ठीक है, GST ज्यादा हो रहा है क्योंकि चीजों की प्राइस बढ़ी है। Yes, that has also been factored in, but in the ratio it has been grown up is much more than the price hike in the products. पावर कंजम्पशन देख लो आप, पेट्रोलियम कंजम्पशन देख लो, सीमेंट कंजम्पशन, ऑटो प्रोडक्शन का डेटा, एवरीथिंग इज शोइंग देयर इज अ ग्रेट ग्रोथ. One cannot deny that, and the market is definitely depicting that very very clearly, right? Low oil prices तो इनफैक्ट $85 पर बैरल आ गए थे, अभी वापस 98 के आसपास में चल रहे हैं. But I believe that although it is showing a bullish sign based upon the technical analysis, but I believe that it should be not going beyond 100 now, right? Gold prices, of course, are increasing. RBI has been very accommodative, and whatever interest rates they've increased has been in a very, very smooth way. I think three meetings before Mr. Dasa had the federal the RBI governor had a little hawkish commentary, but after that he's been having a very dovish commentary. So that's adding up to the adding up as a fuel to the market, right? Inflation well within control है हमारे पास में, थोड़ा ज्यादा है, but then nothing of that sort to worry. So market is looking that as that factor as a positive point. अगर हम नेगेटिव की बात करें तो ऑफ कोर्स चाइना के जो इश्यूज हैं या रशिया यूक्रेन का वॉर है, दोस आर नेगेटिव इश्यूज. अमेरिका का जीडीपी डाउन है, कॉन्ट्रैक्टिंग है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट 4% तक तो हो गए. नेक्स्ट मीटिंग इनकी दिसंबर में है, सो अराउंड 0.4 to 0.5% का इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएगा. एंड जो कि पहले फेडरल बैंक के चेयरमैन मिस्टर जेरम पॉल बोल रहे थे कि भाई by the year end 2023 we will have 4.6% interest rate, but that might be stretched to 5, and that is still not factored in the market. But sooner or later, after next rate hike, market will factor in that also, right? So fear of global recession वो सब है अपनी जगह पे, but it seems now our market has completely discounted it. Now क्यों हो रहा है ऐसा? अगर आप निफ्टी की या ओवरऑल मार्केट की हिस्ट्री देखेंगे, राइट, तो दैट विल शो अप इन अ वेरी वेरी क्लियर वे, राइट? सो आई एम श्योर एवरीबडी नोज who's in the market that Nifty started, NSE started way back in 1992 and 94 के टाइम पे उन्होंने अपना ऑपरेशन चालू कर दिया, राइट? लेट मी apply a weekly chart here, right? So what I've done is I've done the study from 1994 of NSE and just put everything in this chart, right? And this chart will be depicting all kind of crises, including subprime crisis of 2008 या जो governments गिरी, जो NDA minus, ये बहुत सारी, मतलब यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी, एनडीए कोलैप्स हुई, जीडीपी का ग्रोथ वे बैक 3.5% था, देन 5.5 हुआ, 6% हुआ. 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, फिर 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट वापस आई एंड जीडीपी ग्रोथ हमारी वो टाइम पे 8% थी. 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट आई एंड 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, 2020 में हमारा कोरोना क्राइसिस आया. बट फ्रॉम द बिगिनिंग यू वुड सी द मार्केट हैज बीन गोइंग अप इन द असेंडिंग चैनल. Yes, it did go out of the channel. That's the very nature of the market, right? In case of undiscounted news or information or setback, market channel से बाहर चली जाती है. But as a country, our economy has been growing consistently, and that will keep on happening. That's where it is showing that most of the time you would see market has been in up channel or ascending channel, जिसको हम बोलते हैं, right? So almost एक साल से ये descending channel में था,
जो कि एक्सपैंडिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा था. ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी इसकी वजह से काफी बड़ी रही, बट नाउ इट इज आउट ऑफ दैट एक्सपैंडिंग वेज, राइट. तो यहाँ पे अभी मार्केट जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन में जा रही, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. एंड लेट्स डिस्कस what is happening in sectors, what is happening in other areas, so that we can take a call on which sector to remain invested in, which sector we can look at fresh investments, and कौन से सेक्टर में हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. ये पूरा डिस्कशन इसी बात पे है. आई विल नॉट बी टेकिंग स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रेंड इन दिस सेशन. उसके लिए हमारे पास में सैटरडे है, और सैटरडे हम पूरा स्टॉक मार्केट की बात एमजे के साथ में आपके सवालों के ही जवाब देते हैं, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ ओवरऑल व्यू इन द मार्केट, राइट. सो नाउ लेट्स लुक एट सेक्टर्स. तो ये हमने देखा कि 94 से लेके 2022 तक किस हिसाब से मार्केट अब गई है. और अगर जो मैं बीच में बात भी कर रहा था कि भाई ये डेट में मार्केट ने फॉल देखा, तो वो फॉल के पीछे भी अगर आप देखोगे कुछ न कुछ कारण था, राइट. और मैंने ये डेट वाइज डिपिक्ट किया है यहाँ पे कि भाई कब यूएस का कौन सा डेटा आया और किस डेटा ने यहाँ पे तहलका मचाया, राइट. तो ये जो भी फॉल थे उनका एक कारण था. ऑफ कोर्स मार्केट को गिरने के लिए कारण चाहिए होते हैं, राइट. जैसे फरवरी में रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, एक फॉल आया. देन यूएस का जीडीपी श्रिंक हुआ 1.4% से, दूसरा फॉल आया. बट जब 0.6% से यूएस की इकोनॉमी श्रिंक हुई, दैट मीन्स टेक्निकली 2 क्वार्टर में यूएस की इकोनॉमी श्रिंक हुई, जीडीपी माइनस में गया. Technically they went in recession, but our market has been going up from there. So ये एक हमेशा एज एन इन्वेस्टर एक पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बना के रखें, जो कि बहुत क्लियर होना चाहिए कि चाहे मार्केट होए और आदमी होए, उठना तो है दोनों को, जाना तो ऊपर है, राइट. तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो. ये पिछले 30 साल की करीब करीब हिस्ट्री है जिसमें हमने ये चीज देखी, राइट. अब हम और दूसरा क्या देख सकते कि भाई हमारे जो बाकी के सेक्टर्स हैं वहां क्या चल रहा है, राइट. तो हमारे पास में ऑलमोस्ट 18-19 सेक्टर्स हैं. ये जो निफ्टी 50 के स्टॉक हैं वो उन सेक्टर से ही आते हैं. टॉप बेस्ड अपॉन specific criteria, 50 top stocks are picked up and they make Nifty 50. So let's look at कि stock के जो future है ना वहां पे क्या हो रहा है, because that is one important factor जो कि आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में काफी काम आ सकता है, राइट. तो let me apply. There are multiple charts. We'll go through one by one and we'll see कि कौन से सेक्टर्स में हम कहाँ पे खड़े हुए, राइट. सो पहला चार्ट हमारा पीएसयू बैंक का, राइट. सो पीएसयू बैंक ऑल टाइम हाई में है. इफ यू नहीं, पीएसयू बैंक अभी ऑल टाइम हाई में नहीं है. ऑल टाइम हाई से तो 20% नीचे है, राइट. ऑल टाइम हाई इसका 4642 के आसपास में था. इट्स ट्रेडिंग एट 3751. सो पीएसयू बैंक के मोस्ट ऑफ द बैंक, स्पेशली अगर आप देखोगे एसबीआई वगैरह हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये निफ्टी 50 के क्लाइंट से आते हैं. तो इसका मतलब बैंक निफ्टी में करीब करीब 20 ये जो ऑल बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे आ गई है, लेकिन पीएसयू बैंक अभी भी ऑल टाइम हाई से 20% नीचे है. इसका मतलब अगर पीएसयू बैंक ऑल टाइम हाई जाते हैं तो डेफिनेटली ये बैंक निफ्टी को ऊपर पुल करेंगे. बैंक निफ्टी ऊपर पुल होएगी तो निफ्टी भी पुल होगी, राइट. सो जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड वी विल कंक्लूड एट द एंड ऑफ द सेशन कि व्हाट वी शुड बी डूइंग, राइट. सो पीएसयू बैंक में हमारे पास में 20% अपसाइड है क्लियरली. नाउ प्राइवेट बैंक में क्या है? प्राइवेट बैंक करीब करीब 2.4% डाउन है ऑल टाइम हाई से. नॉट अ बिग नंबर, राइट. नॉट अ बिग नंबर इन टर्म ऑफ रीचिंग ऑल टाइम हाई. सो पीएसयू, तो इसका मतलब है क्या कि बैंक निफ्टी को ऊपर लाने में प्राइवेट बैंक्स का बहुत बड़ा हाथ है. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये रैली में एक्सिस बैंक होने दो, आईसीआईसी बैंक होने दो या एसबीआई होने दो, इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है. जो लेगार्ड्स हैं वो खाली
बचे हैं HDFC बैंक एंड कोटक बैंक, राइट। अगर कोटक बैंक एंड HDFC बैंक ऑल टाइम हाई पे जाते हैं तो दैट विल पुल निफ्टी अनदर 1000 पॉइंट फ्रेंड्स, राइट। तो ये एक हमको देखने की बात है। और इकोनॉमी अगर हमारी ग्रो कर रही है तो बैंकिंग सेक्टर सबसे पहले ग्रो करता है। रीजन बीइंग सिंपल, अगर इकोनॉमी में पैसा आ रहा है तो पैसा तो चैनलाइज बैंक के थ्रू होना है, तो बैंक की बुक्स तो बढ़ने ही वाली है, बैंक की ट्रांजेक्शन्स तो बढ़ने ही वाली, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ने ही वाली है, राइट। सो ये रहा हमारा प्राइवेट बैंक। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। अभी तो आपको पता होगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेपरेट इंडेक्स, एज ए इंडेक्स भी ट्रेड करता है, इसका फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी ट्रेड होता है, राइट। और अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं तो करीब करीब ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास में है, काफी बुलिश लग रहा है, राइट। नेचर वाइज इट्स बुलिश नाउ, और इट्स जस्ट 5.5% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आ जाते हैं? दोज फाइनेंशियल कंपनीज व्हिच आर नॉट बैंक्स बट दे मे बी वर्किंग एज NBFC और किसी न किसी टाइप का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो दैट सेक्टर इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, राइट। तो 5.5% नीचे है, so this 5.5% अप अगर ऑल टाइम हाई में ये आता है तो another 0.5 to 1% बैंक निफ्टी को ये पुल कर देगा, राइट। देन लेट्स लुक एट द नेक्स्ट Nifty Infra, right? So Nifty Infra now is close to all-time high. It's been consolidating for more than a year now, right? अगर आप देखोगे तो ये करीब करीब हाँ ऑलमोस्ट एक साल से ये कंसोलिडेट कर रहा है ये बॉक्स के अंदर with a bullish bias. It's not going downside, right? Every time it goes to this level, it pulls back. Now अगर आप ये लेवल को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम ये यहाँ पे हिट कर रहा है, this level of previous all-time high is already weak now, and if Nifty Infra breaks out, you know, even if with a 10% move upside, it will take Nifty to at least 2 to 2.5% upside. So ये भी एक हमको अच्छा bullish movement दे रहा है। तो you know resistance है but weak resistance अभी इसके पास में, right? So far, we covered 4 sectors and 4 sectors are looking bullish. Now let's look at Nifty consumption, right? Consumption का all time high हमने recent ही लगाया था, right? 9th month, सितंबर के मंथ में हमने consumption का हाई लगाया था 8,147 पे, and we are at 7,938. 7,938 का मतलब कितना हुआ? We are close to 2.5% down. Now, no matter what, आपकी जो consumption के stocks हैं friends, वो उनका बिजनेस, उन कंपनीज का बिजनेस हमेशा बढ़ने वाला है, राइट। क्यों? भारत की जनसंख्या इतनी है कि चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे आटा हो, चाहे तेल हो, चाहे नमक हो, ऑल कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स विल बी कंज्यूम्ड, बिकॉज उसके बिना न आप आगे बढ़ सकते हो न फैमिली आगे बढ़ सकती, राइट। जिंदा भी नहीं रह सकते। सो ये एक सेक्टर है जो हमेशा अप मूव में रहता ही रहता है, एंड अच्छे असेंडिंग चैनल में ये मूव कर रहा है। तो 2.5% ऊपर जाके यू नो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना इसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो ये था हमारा consumption. Now we covered 5 sectors. Let's cover the next sector now, right? So next sector है हमारा reality, right? So what reality has been doing? Let's say reality sector ने in fact all time high मारा था करीब करीब नवंबर दिसंबर के महीने में पिछले साल। So we are 11 months away from all time high. तो ये 11 मंथ्स में क्या हुआ? ये लोअर लोज मारता गया और इसने यहाँ पे लो बनाया 367 का। सो एज ऑफ नाउ अगर मैं इसको देखता हूं तो ये 20% डाउन है ऑल टाइम हाई से, बट इट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ नाउ यू नो दिस इज जस्ट माय इमेजिनेशन कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। ऑल्दो अप ट्रेंड में है, एक ट्रेंड लाइन, ये जो लोअर ट्रेंड लाइन थी इसकी डाउन ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया है, लेकिन वीकनेस है यहाँ पे, बहुत स्ट्रेंथ नहीं है और एक और ट्रेंड लाइन इसको पार करनी है। अगर ये यू नो 485 490 के ऊपर जाता है तो देन यू विल सी दिस
also would lead to all-time high. Now, that means realty is highly undervalued sector at this point of time. तो क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज मार्केट में हो रही है, ग्राउंड रियलिटी आपको समझ में आएगी व्हेन यू लुक एट द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द बिल्डर, इफ यू लुक एट द per square feet rates or the speed of construction of buildings, right? तो उसमें तो कहीं कमी नहीं आई है, right? तो ये एक सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और यहाँ से इसके बुलिश होने के काफी अच्छे पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज है, राइट? तो इस सेक्टर पे नजर रखिए, है ये असेंडिंग चैनल में ही बट ओवर एक्सटेंड कर गया था एंड मीन रिवर्सल की वजह से इसको पिटना था कुछ न कुछ। सी जनरली क्या होता है, अगर मार्केट में जो है पैसा मोर और लेस लिमिटेड रहता है, एक सेक्टर से जहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, जो बड़े फंड हाउसेज हैं वो क्या करते हैं, वहां से प्रॉफिट बुक करते हैं और दूसरे स्टॉक्स में जो अंडरवैल्यूड या दूसरे सेक्टर्स जो अंडरवैल्यूड है उन सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो समटाइम्स इट इज अ काइंड ऑफ करेक्शन ड्यू टू प्राइस। तो यहाँ पे अच्छी प्राइस करेक्शन भी हुई है और यहाँ पे टाइम करेक्शन भी हुई। इट हैज टेकन ऑलमोस्ट 11 मंथ्स, राइट? तो 11 मंथ्स का करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन होता है, यहाँ पे एक अच्छी पॉसिबिलिटी हमको दिख सकती है। तो नेक्स्ट बीटन डाउन, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा निफ्टी रियलिटी या रियलिटी सेक्टर, राइट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमारा बीटन डाउन था। उसके अलावा हमारा एक और सेक्टर है जो है बीटन डाउन ऐसे ही। नाउ अगर आप देखोगे इसके बीटन डाउन होने के भी काफी कारण हैं। ये जनवरी तक, इसने जनवरी में ऑल टाइम हाई लगाया था जनवरी 2022 को। सो ऑलमोस्ट यू कैन से 10.5-11 मंथ से ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था। नाउ अगर इस पीरियड को देखोगे अगर, तो ये यूक्रेन वॉर से ना करीब करीब एक महीने डेढ़ 2 महीने पहले से ये गिरावट आना चालू हुई। दैट इज वेयर एवरी टाइम आई टेल यू कि मार्केट जो है ना फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, दे डिस्काउंट इवेंट्स much earlier than actually they happen most of the time। जो जिस हिसाब से यूएस, जिस हिसाब से रशिया एंड यूक्रेन का टेंशन बिल्ट हो रहा था, मार्केट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्काउंटिंग देन एंड ऑफ कोर्स उसमें इन्फ्लेशन और उसमें जो यूरोप की हाल होनी वो सब यहाँ पे फैक्टर आउट हो गया, क्योंकि आईटी का मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस जो होता है वो ओवरसीज में होता है, राइट, डॉलर टर्म्स में होता है। तो scope of IT companies getting more business got reduced here, that's where ये सेक्टर की अच्छी खासी पिटाई हुई। इनफैक्ट अगर देखोगे आप तो ये अभी भी एक डिसेंडिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है और करीब करीब ये 27% ऑल टाइम हाई से डाउन है, राइट? इसका ऑल टाइम हाई था 39,447। अगर मैं देखूं बुलिश कब होगा, ये 32,500 के ऊपर अगर ये निकलता है, इनफैक्ट even if it goes above 30,650, तो यहाँ पे आप एक staggered manner में पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं। Although the IT companies are still not undervalued, but fairly fair valuations है at this point of time IT companies का। तो मेरे ख्याल से this could give you another opportunity। हमारा काम है कि हम beaten down sectors को देखें जहाँ पे कि अभी bullishness इमर्ज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि जो ऑलरेडी गिर के उठ चुके हैं वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन आप बना नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे होगी नहीं, राइट? इसके बाद में जो हम नेक्स्ट सेक्टर लेंगे फ्रेंड्स, दैट इज ऑटो सेक्टर, राइट? So auto sector we've been observing for a long period of time. So those of you who've been investing with me, you already know been bullish on Maruti. We've been bullish for more than 7-8 months on auto sector, and we've been buying auto companies in a staggered manner, right? तो यहाँ पे अभी अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो इट्स कमिंग वेरी वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई, राइट? इनफैक्ट 1 या 1.5% ही ये नीचे है ऑल टाइम हाई से, राइट? तो ये इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। नाउ इफ यू लुक फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे एक यू कैन से द राउंड कप एंड उसका हैंडल का पैटर्न बन रहा है, which is suggesting it to have around 7 to 8% upside। Now एक ascending channel में है, right?
जो इसने डाउन साइड देखनी थी, ये करीब करीब पिछले सेम टाइम से 1 साल पहले से इसमें डाउन ट्रेंड आया था, राइट। एंड यहाँ पे 4-5 महीने के डाउन ट्रेंड के बाद में धीरे धीरे यहाँ पे एक स्टैगर्ड मैनर में लोगों ने खरीदना चालू किया था। गया ये स्टॉक, ये सेक्टर ऊपर काफी गिरते पड़ते, बट आई थिंक स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैड स्टार्टेड बाइंग way back in April and May, right? And I think that's the time we also entered in this sector, right? तो ये फ्रेंड्स हमारे थे करीब करीब 8 सेक्टर जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा हमारे पास में और सेक्टर्स हैं, राइट? तो ये सेक्टर्स में एक्सेप्ट यू नो 1 or 2 we saw all are either very close to their all-time high or they are on the verge of ब्रेकआउट, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं ऑटो की, तो ऑटो में जो सबसे ज्यादा चीज कंज्यूम होती है वो है मेटल, राइट। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है मेटल। अगर हम बात करें रियलिटी सेक्टर की, तो वहां पे भी स्टील का कंजम्पशन, मेटल का कंजम्पशन काफी ज्यादा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बट रिमेंबर, मेटल सेक्टर इज अ सिक्लिकल सेक्टर। तो एक कोई भी सिक्लिकल सेक्टर होता है, जैसे इवन ऑटो इज अ सिक्लिकल सेक्टर। तो सिक्लिकल सेक्टर की एक स्पेशलिटी होती है कि ये कई बार 2-3 साल के लिए डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं, और उसके बाद में फिर ये 6 महीना 1 साल पॉजिटिव रिटर्न देते हैं एंड वापस डाउन साइकिल में चले जाते हैं। वन नीड्स टू बी वेरी स्मार्ट इफ वन नीड्स टू इन्वेस्ट इन cyclical stocks, right, or cyclical sector. So what is happening in metal ने यहाँ पे करीब 6280 के आसपास का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो तोड़ा, और उसके बाद में ये एक ब्रेकआउट में है। इट्स गोइंग टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई। नाउ अगर आप सोच रहे कि मेटल सेक्टर में एंट्री लेनी चाहिए, friends, I'm not reading your comments. My apologies for that. A warm welcome and good evening to you. I'll address your question as long as they are related to this market, not particular stock, at the end of the session. Okay? So bear with me and let's go in a flow and understand the market, where we are standing in the market and what can be done. This is the purpose of this session today, right? So अगर निफ्टी मेटल ऑल टाइम हाई में आता है, तो ट्रस्ट मी, बहुत लोग जिन्होंने निफ्टी मेटल ऑल टाइम हाई के आसपास में खरीदा, क्योंकि इट वाज इन अ बुलिश टर्न, एंड उसके बाद में ये 5-6 महीने तो एकदम डाउन ट्रेंड में रहा, तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग चालू करेंगे एंड यू माइट सी निफ्टी इंडेक्स कमिंग बैक टू 6300 के आसपास में। सो यहाँ पे अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं जो कि स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड लेना समझता है, तो आप यहाँ पे पोजिशन ले सकते हैं। और अच्छे खासे स्टॉक्स में सेल है, एनएमडीसी है और टाटा स्टील है, दे आर डूइंग वेरी वेल, राइट। So this is one sector which has turned out to be bullish, although I was expecting it to go in a sideways to bearish zone. Now next sector is a Nifty commodities sector. So various kind of commodities, right? These are not the normal commodities what we deal in commodity trading, right? ये अलग Nifty commodities है। तो इफ यू लुक एट इट, इट्स बीन इन अ डाउन ट्रेंड। एक ट्रेंड लाइन अभी इसने ब्रेक की है। लेट इट सस्टेन फॉर फ्यू डेज अबव 6000 लेवल। अगर ये 6100 क्रॉस करता है, तो देन इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स 6480 टू 6500। यहाँ पे भी आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगी, राइट। सो काफी सेक्टर है। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जो अपसाइड मूव दिखा रहे हैं अभी यहाँ पे, राइट। सो निफ्टी अकेला ऊपर नहीं जा रहा है, बैंक निफ्टी अकेला नहीं ऊपर जा रहा है, बाकी के सेक्टर भी ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे करीब करीब 8% डाउन है ये अपने ऑल टाइम हाई से, फ्रेंड्स, राइट। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्टर है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट। तो जैसे वोल्टास वगैरह हो गए, वो सब इसमें आ जाते हैं, राइट। आपके बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, वो आइटम भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसमें ये तो करीब करीब ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं चल रहा है। इट्स जस्ट 1.5% डाउन फ्रॉम दैट, राइट। प्योर बुलिश मूवमेंट है, इसके ऊपर आप कंसिडर कर सकते हो। ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक होता है
45,250, तो उसके ऊपर डेफिनेटली आप इस सेक्टर के स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हो। नाउ इस सेक्टर के में तो बहुत सारे स्टॉक होंगे, कम से कम 8 7 8 तो होंगे ही होंगे, राइट? एंड यू माइट आल्सो ऑब्जर्व दैट सम कंपनीज आर इन 2 3 सेक्टर्स, राइट? उनके उनके बिजनेसेस ऐसे होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ढूंढनी है फ्रेंड्स, और सिर्फ उन्हीं कंपनीज में पोजीशन बनानी है, राइट? तो ये हमेशा ध्यान रखें, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स क्लियरली चेक करने हैं, राइट? नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी एक ओवरऑल अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म देखोगे, निफ्टी एनर्जी वाज इन अ ascending channel. Ascending channel is a bullish channel. What happened in last 7 8 months is it went through a time correction, right? एनर्जी की कंजम्पशन हमेशा बढ़ते जाने वाली है बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ में, राइट? बट अब अगर आप बात करेंगे यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो आपको अगर एनर्जी सेक्टर की कंपनीज में लेट इट बी टाटा पावर और लेट इट बी रिलायंस और एनी अदर पावर कंपनी, 28,300 के ऊपर अगर आपका निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स जाता है, देन डेफिनेटली यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन एंड माइट एक्सपेक्ट 10 to 15% अपसाइड ऑन दैट, राइट? तो ये भी एक अपसाइड मूव में है। एज ऑफ नाउ 7.5% डाउन है। इसकी जो रुकावट है वो एक ट्रेंड लाइन है एज ऑफ नाउ, बट बढ़ते हुए मार्केट में ट्रेंड लाइन को तोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, राइट? देन नेक्स्ट इज अ मीडिया, राइट? सो मीडिया सेक्टर हमने देखा काफी टाइम से लंबे कंसोलिडेशन में गया मीडिया सेक्टर, राइट? कब से? करीब करीब दिसंबर में इसने ऑल टाइम हाई मारा था, फिर इसने ट्राई किया अप्रैल में ऑल टाइम हाई मारने का, उसके बाद में काफी गिरावट हमने यहाँ पे देखी और धीरे धीरे अभी कंसोलिडेट है, तो ये भी स्ट्रेंथ बना रहा है, राइट? मीडिया सेक्टर है तो खुद मीडिया में, और मीडिया में भी ज्यादा रहता है, मतलब स्टॉक मार्केट वालों की पार्लेंस में ये मीडिया वाले काफी इनके स्टॉक्स को डिस्कस करते रहते हैं, तो ये भी एक अप मूव दे सकता है यहाँ से। हालांकि मैं निफ्टी मीडिया से थोड़ा दूर रहता हूँ, मीडिया सेक्टर से थोड़ा दूर रहता हूँ, पर्सनल चॉइस है। मोस्टली मैंने देखा है कि इन कंपनीज की वैल्यूएशन करना उतना आसान काम नहीं है जितना कि कोई चीज जो मैन्युफैक्चर कर रही है या ऐसी टेंजिबल प्रोडक्ट्स और सर्विस देने वाली कंपनी के बनस्पत, इनको आसान नहीं है इवैल्यूएट कर पाना। सो कई बार यहाँ पे आपको बबल मिलेंगे, फ्रॉड मिलेगा स्टॉक की प्राइस में, विच most of the time retail traders like us are not capable of evaluating. So हम जनरली इसको इग्नोर करते हैं। अभी भी ये डाउन ट्रेंड में, आई वुड नॉट प्रीफर टू टेक एनी पोजीशन इन एनी ऑफ द मीडिया कंपनीज, राइट? सो ये एक सेक्टर है। ना उसके अलावा भी सेक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स लेट्स लुक एट सीपीएसई सेक्टर, राइट? सीपीएसई इज व्हाट? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब ये सरकारी कंपनी से बना हुआ इंडेक्स है, राइट? जिसमें आपके आरईसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया और पीएफसी हो गया, ऐसे टाइप के कंपनीज का ये इंडेक्स बना हुआ है। एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी इट हैज जस्ट मेड ऑल टाइम हाई लास्ट वीक इटसेल्फ, राइट? तो ये वहीं पे है, कंसोलिडेट कर रहा है। एंड दोज ऑफ यू been with me for a long period of time, you would see I've been having positions in REC or PFC or Power Grid. Those all companies are giving me tremendous profit, right? It's been followed for many years. तो ये है आपका CPSE. PSE, which is state run public sector, they are also close to all time high only. तो वहां पे भी बट वो 5 बार टॉप बनाया हुआ है, तो 5 6 बार टॉप बनाएगा तो वापस उसको ब्रेक करना वो लेवल को बड़ा आसान काम होता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। उसके अलावा हमारे पास में एक और सेक्टर है जिसको हम बोलते हैं एमएनसी, राइट? एमएनसी कंपनीज, तो वो भी डबल टॉप पे है, ऑल टाइम हाई के काफी क्लोज में है एंड बुलिश है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निफ्टी सर्विस सेक्टर, राइट? सो
बुलिश है एंड इट इज क्लोज टू ऑल टाइम हाई। नाउ अगर हम देखें तो इसमें से सिर्फ 3 या 4 सेक्टर है आउट ऑफ 17-18 सेक्टर में से 4 सेक्टर ऐसे हैं जो बेरिश हैं और ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, राइट। तो उन सेक्टर में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर काम करना चालू करिए। फार्मा इज आई थिंक डिड वी मिस फार्मा? आई थिंक वी डिस्कस फार्मा, राइट। सो फार्मा में आप देख सकते हो it is again I think we missed pharma. Let me see whether pharma हमने इनमें लिया था या नहीं लिया था। हाँ, निफ्टी फार्मा, राइट। तो निफ्टी फार्मा काफी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में था। निफ्टी फार्मा एंड आईटी इनफैक्ट ये एक साथ अपसाइड गए थे पोस्ट कोविड एंड मोर और लेस सेम टाइम पे करेक्शन चालू हुआ। फार्मा में थोड़ा जल्दी करेक्शन चालू हो गया था एंड ऑलमोस्ट 1 साल के करेक्शन के बाद में अब फार्मा सेक्टर थोड़ा बुलिश दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ से इसने अच्छा एक जो डाउन जो डिसेंडिंग चैनल था उसका अपर चैनल इसने तोड़ा है और यहाँ से अच्छी अप मूव होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो यहाँ पे आई एम सेलेक्टिवली बाइंग फार्मा कंपनीज नाउ इन अ स्मॉलर क्वांटिटीज। स्टिल मैंने 50-60% तक की पोजीशन यहाँ से ली हुई है। मतलब हमने वी कीप ऑन बाइंग इन स्टैगर्ड मैनर ओनली। सो ये एक हमारी बाइंग की स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल सी है। एट अ टाइम वी डोंट बाई 100%, right? So when the market is giving value buying opportunity, we might buy 10 to 20% or 30%. When it gives technical reversal another 20-25%, तो हम ऐसे बढ़ाते जाते हैं अपने positions को। Let me have some water from. So कुल मिला के we can say roughly 65 to 70% sectors have already turned bullish or they are very close to all-time high. तो अगर हम ओवरऑल मार्केट की सिनेरियो देखें, जिस हिसाब से मार्केट एक लेवल पे है और जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ रहा है या अभी वी आर एट द एंड ऑफ 2024 में इलेक्शन है। इन माय ऑब्जर्वेशन इलेक्शन से 1-1.5 साल पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनलाइज होते हैं, इनॉग्रेट होते हैं, अनाउंस होते हैं। तो इंफ्रा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अब तेजी आनी ही है, राइट। तो वो आपको चार्ट से भी दिखाई दे रहा है। जब इंफ्रा सेक्टर में बढ़त होती है तो उसके साथ में मेटल सेक्टर शाइन, उसके साथ में सीमेंट और जो भी बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स होते हैं दे शाइन, रियलिटी सेक्टर शाइन्स अलोंग विद, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं, इम्पैक्ट करेंगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप सिंपल समझिए, निफ्टी बैंक निफ्टी सब 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, 100 पीरियड के ऊपर है, 200 पीरियड के ऊपर है। छोटे मोटे करेक्शन में आपको अपॉर्चुनिटी दिखेंगी बाई करने की, राइट। सो यू हैव टू बी a connoisseur in picking up the stocks, right? Well, अभी ये तो नहीं कह सकता हूं मैं कि वैल्यू पिकिंग का अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वैल्यू पिकिंग जब निफ्टी 15,000 के आसपास में आई थी, 15,250 के आसपास तब थी। अब ग्रोथ पिकअप हो सकती है, ग्रोथ के जो स्टॉक हैं या आईटी फार्मा रियलिटी में वो स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जहां पे ये अभी भी 20% 25% की अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है, वो कुछ स्टॉक ऐसे हो सकते हैं जहां पे आप पोजीशन बनाने की सोच सकते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी टू लुक एट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनीज। Q1 Q2 के रिजल्ट आ गए हैं। पोस्ट कोविड हमने 1 साल के रिजल्ट पहले ही देख लिए हैं। कंपनी की बैलेंस शीट देखें, कंपनी का फंड फ्लो देखें, कंपनी के जो वेरियस रेशियोज हैं। ऐसा तो नहीं है प्रोमोटर की जो बोलते हैं ना हम लोग की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू नहीं होने चाहिए। So fundamentally strong companies you can start picking up at this point of time, right? So that's about the market. That's about how we can look at the market for taking our positions. मेरे ख्याल से जैसे जैसे ऑल टाइम हाई के आसपास में कोई भी सेक्टर जाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी।
प्रॉफिट बुकिंग से हमको डरना नहीं. पॉसिबली दोज अपॉर्चुनिटीज विल बी द वंस विच where we will get opportunity to increase our quantities if you are already in profit in those stocks, right? So let me take your questions if any. I think from my side, and as I said, मैं stock specific नहीं हूँ यहाँ पे, और मैं stock specific बात नहीं करूँगा यहाँ पे. मैं बात करूँगा मार्केट की, मार्केट के सेगमेंट्स की, सेक्टर्स की, मैक्रोज की, माइक्रोज की. तो जो वरीज हैं यूएस की और यूरोप की, वो हमारी वरीज एक्चुअली नहीं है. बट देयर आर टाइम्स द मार्केट्स आर कपल्ड. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आवर मार्केट इज नॉट कपल्ड विद देयर मार्केट, बट सूनर और लेटर ऐसा होएगा. बट आई सी द ब्राइटर साइड ऑफ इट, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे, यूरोप में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, द इम्पैक्ट ऑफ दैट विल बी दैट ग्रोथ उनकी स्टैग्नेंट हो जाएगी एक टाइम के बाद में. अगर उनको ग्रोथ को फ्यूल करना है तो इंटरेस्ट रेट कम करने होंगे, और जैसे ही वो होगा फ्रेंड्स, वो फिर पैसा स्टॉक मार्केट में लगना चालू होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाना चालू होगा. जस्ट थिंक when their markets are down, when they are facing the challenges, if we are at all time high, तो यहाँ से अगर let's say 3 months 4 months down the line, if they start freezing the hikes in the interest rate, तो उनके मार्केट में एक उछाल आएगा, और वो उछाल हमारे अभी के उछाल को डबल उछाल में बदल देगा, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन दिस मार्केट. But at the same time, I keep on booking profit as and when I make 25-30% in a stock. Part profit में उसका book कर लेता हूँ. जैसे वो long term हो जाएगा, most of the time I'll be booking profit in my swing and positional trades. So my mentor has taught me very clear funda: you will never become poorer by booking the profit, and a bird in hand is better than two in bush, right? So you always need to remember that. All right. Right, let me see if there are any questions related to this session. Sonia Shah ji ka sawal hai, market is reaching a high again, so should we keep investing or should we book profit? I think I have already answered this question, Sonia ji. You can book part profit and you can keep on investing. Undervalued sectors में अभी भी अच्छे स्कोप हैं. फार्मा में अच्छा स्कोप है, आईटी में अच्छा स्कोप है, इंफ्रा में अच्छा स्कोप है. Definitely consumption to evergreen theme, right? So apart from that, you can also pick up PSE and CPSE stocks which are giving you very high dividend. Even मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, last 8-9 months I've done that part also. A lot of investment in that sector, right? 10-12% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा, तो क्यों नहीं लेना है उसको. सूरज जी का सवाल है, व्हाट आर सपोर्ट लेवल्स वेयर वी कैन स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग निफ्टी स्टॉक्स. सी, निफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर इट इज स्टैंडिंग, वहां से अगर गिरता है तो कहां जाना चाहिए, राइट? ये आपका सवाल है. सो लेट मी, you can expect 10-12% downside in case any adverse news comes, क्योंकि ज्यादातर न्यूज जो है मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर आउट हो गई है, राइट? तो जितनी भी नेगेटिविटी थी वो तो निकल गई है. अगर आप निफ्टी में डाउन साइड भी देखना चाहें, एक मिनट दीजिए मुझे, निफ्टी का चार्ट. तो अभी तो जो जोन बने हुए हैं कंसोलिडेशन के, इन दैट यू कुड सी 18,000 में बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, राइट? तो 200 पॉइंट 250 पॉइंट की आप सोच सकते हो, राइट? हाँ, देर आर स्मॉल विंडोज, नोविस विंडोज द मार्केट हैज लेफ्ट बिहाइंड. इन केस ऑफ एनी एडवर्स न्यूज कम्स, देन 17,300 पे जो है लोएस्ट विंडो है. उसके अलावा एक विंडो है यहाँ पे 17,825 की. ये विंडोज हो सकता है शट होने के लिए आए, but those will be good opportunities for you, right? All right, guys, so I hope you get some clarity on the sectors, on the market, and how you can take positions in this market. So market se dare nahi, FIs have come back, and they will have to come back.
right? That was a concern, but now even domestic money flow is good. People who have not been in the stock market have got now immense trust in this market and the capabilities of this market to generate wealth for common men. That's what is driving the market, and all kind of shocks of FIs, they withdrew I think around close to 2 lakh plus crore. वो सब भी एब्जॉर्ब कर लिया अगर हमारे मार्केट ने, तो मच मोर कैन बी absorbed, right? So nothing to worry about it. छोटे मोटे करेक्शन आए, those will be a window of opportunity for you and me. With this thought, I wish you good luck, for investing and making great wealth from here. We'll be having a seminar. Those of you who are interested in understanding the stock market and how it functions, how the stock go up or down, we'll be having a half 3-hour session. I think my colleagues have already put that uh, you know date in place, so you can see in our YouTube. You will see that advertisement soon. You can register for the webinar. It's 3 hours webinar. You will get a good feel about the technical and fundamental aspect of a little of how to create wealth in this kind of environment. That's the webinar is all about. It's an entry level webinar. तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को दीजिए ताकि उनको भी एक क्वालिटी की नॉलेज मिल पाए, एक अंडरस्टैंडिंग मिल पाए मार्केट की, ताकि वो भी मार्केट से डरे नहीं बट मार्केट को समझें, सीखें और इन्वेस्ट करें. So friends, with this, I forgot to wish you happy Guru Purnima, happy Guru Parv today, right? Guru Nanak Dev Ji ki Jayanti hai आज, and I wish you happy Guru Nanak Jayanti and happy trading and happy investing. Good night, goodbye.